Hello everyone. So last time we studied about flow through pipes in series and flow through parallel pipes. Okay, in series as well as series pipes are also called as compound pipes. Okay, and along with it we also studied about flow through parallel pipes. Okay, so today we are going to start a new topic which is flow through branched pipes. Okay, branched pipes. Okay, as you see in the diagram, here you see it is a three reservoirs, okay, three large reservoirs, and which are connected with each other with the help of pipes. Okay, so you can say that when three or more reservoirs are connected by means of pipes having one or more junctions. Okay, here is junction D is the junction here. Okay, having one or more junctions, the system is called as branching pipe system. Okay, so this type of system we consider as branching pipe system. Okay, the length, diameter, and coefficient of friction of each pipe will be given to you. Like here, the L1 will be the length of this pipe, L2 will be the length of this pipe, and L3 will be the length of this pipe. Okay, so for solving this, okay, such problems, for solving this, we generally use we need the idea of three equations, which is continuity equation, firstly, which is very important. Okay, continuity equation. Second one is Bernoulli's equation. Okay, and third one is Darcy-Weisbach equation. What is this Darcy-Weisbach equation? It is the equation which we use to find major losses. Okay, due to but are these major losses? Major losses are due to friction. Okay, now we have assumed here that there are three large reservoirs. Okay, and the water level in these reservoirs are constant. Okay, in all the three reservoirs the water level is constant. Now minor losses, we are not considering here minor losses. Okay, the flow takes place from this A reservoir to junction D, and then from junction D, okay, here is a junction D, and then from junction D to B and C. Now when the water moves from, or any moves from A to B, sorry, A to D, what happens? It will move to D to C, because it is in downward direction. Okay, now as we see, now this from junction D to B, when will the flow from junction D to B will take place? When the piezometric head at D, okay, piezometric head at D. What is this piezometric head? Which is PD upon rho G plus ZD. ZD is the distance from the datum. Here it is ZD from A for A reservoir, this is ZA, and for B reservoir this is ZB, and for C reservoir this is ZC. Okay, when will this flow takes place from D to B? When the piezometric head at D, okay, at this point the piezometric head at D is more than the piezometric head at B. Okay, at that point the flow from A to B, sorry, D to C, B takes place. Otherwise it will take place from D to C. Okay, what will the piezometric head at D? Piezometric head at D will be PD upon rho G plus ZD. Okay, this distance plus PD upon rho G. And what will the piezometric head at B? Piezometric head at B will be ZB only. Okay, so here I have written also HF1, HF2, and HF3. These are the various head losses in different positions. Okay, so first of all, for flow from A to D, if we are considering from flow A to D, okay, this one. Now according to Bernoulli's equation, this ZA will be equal to what? This ZA will be equal to this ZD plus piezometric head of at D, which is PD upon rho G plus what? HF1, which is head loss. Okay, HF1, because why H1? Because we are considering this pipe. Okay, if we are taking flow from D to B, okay, from this point to this point, we're talking about this flow.
Then from Bernoulli's equation, what will be the d point? It is Zd plus Pd upon rho g, which is equal to what? Zb. This is Zb plus head loss in this one, which is Hf1. Okay, this will be flow from D to B. And what will be the flow from D to C? This one D to C, D will be same, that is Zd plus Pd upon rho g, which is equal to what will the flow in C? It is equal to Zc, this one, okay, Zc plus Hf3, which is the head loss in pipe 3. Okay, I will show you. So these three equations came out from the Bernoulli's equation. This one, and this one. Okay. In the starting, I told you we will use three equations here. First is continuity equation, second is Bernoulli's equation, and third is Darcy-Weisbach equation. Okay. Now from continuity equation, what we will get? Okay. Now discharge. See here, the discharge through AD will be equal to discharge through DB. Okay, discharge through DB and discharge through DC. तो जो डिस्चार्ज हमारा AD से A से D तक हो रहा है, ठीक है, उतना वो किसके इक्वल होगा? डिस्चार्ज जो D से B हो रहा है और डिस्चार्ज जो D से C हो रहा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? पैरेलल में पढ़ा था ना, कि जब हमारी पाइप्स पैरेलल होती हैं तो जो हमारे पास हेड लॉस होगा, ठीक है, अगर पैरेलल में एक फ्लो यहाँ मूव कर गया, एक डाइवर्ट यहाँ पे हो गया, तो एंड में वो सिंगल पाइप के थ्रू मिल जाएगा, पर जो उसमें हेड लॉस होगा वो दोनों में सेम रहेगा। ओके, हेड लॉस और डिस्चार्ज वो सेम रहेगा। तो सिमिलरली इस केस में हमारे पास जो डिस्चार्ज AD का होगा वो किसके इक्वल होगा? DB और DC के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? AD में क्या डिस्चार्ज होगा? ये फर्स्ट पाइप है, तो पाई/4 D1 स्क्वायर। डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू A1 इंटू V1, ठीक है, तो एरिया फर्स्ट का। सिमिलरली डिस्चार्ज DB का क्या आ जाएगा? A2 का एरिया, A2 V2, और जैसे ही A3 V3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 4 अननोन्स है, कौन कौन से? V1, V2, V3 और PD अपॉन रो जी। ये 4 अननोन्स है। जी ZD, जो Z डाटम से जो डिस्टेंस है वो तो हमें गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में। तो इन 4 इक्वेशंस के लिए हम अननोन्स के लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। और 4 इक्वेशंस कौन कौन सी हो गई हमारे पास? एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास फोर्थ ये वाली हो गई, ठीक है। 4 अननोन्स हैं हमारे पास, और हमारे पास 4 जो है 4 ही इक्वेशंस है, तो हम इजीली वहाँ से अननोन्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था फ्लो थ्रू ब्रांच्ड पाइप्स। अब ये आपको क्लियर होगा अगर हम इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमें न्यूमेरिकल गिवन है कि हमारे पास 3 रिजर्वायर्स हैं A, B और C, जो एक पाइप सिस्टम से कनेक्ट है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्चार्ज इनटू और फ्रॉम द रिजर्वायर B एंड C। ओके, जो B और C रिजर्वायर है वो हमें डिस्चार्ज निकालना है उनका। रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम रिजर्वायर, डिस्चार्ज हमें क्यों दिया हुआ है हमें, विच इज़ 60 लीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो इसको जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। ओके, हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द रिजर्वायर सी के हाइट ऑफ वो भी दी हुई है हमें। अच्छा जी, हमें निकालनी है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ वाटर लेवल इन रिजर्वायर सी हमें निकालनी है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ हमें गिवन है। ऑल पाइप्स के लिए सेम है, इसमें 0.006, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट है हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रिजर्वायर हैं A, B और C। इनकी लेंथ्स, इनका डाया और इनका डिस्चार्ज जो है हमें फर्स्ट वन का गिवन, डिस्चार्ज मतलब गिवन है हमका, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज गिवन है, और ये वाला ZA भी गिवन है हमें, और ZB भी गिवन है, विच इज़ 40 एंड 38, एंड ZC हमको निकालना है। ओके, तो लेंथ गिवन है हमें, तो पहले तो जो हमारे पास डाया गिवन है 30 mm, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 30 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर इनको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ और डाया आ जाएंगे।
ओके, डिस्चार्ज हमें गिवन है विच इज़ 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसमें कर लेते हैं जैसे हमने डेरिवेशन में किया था। अब हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं ई से, ए से हम डी जा रहे हैं, तो क्या इक्वेशन आएगी विच इज़ जेड ए। ठीक है, जेड ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारे पास जेड डी। ओके, ये डिस्टेंस हमारे पास जेड डी आ जाएगा और प्लस पी डी अपॉन रो जी प्लस हेड लॉस विच इज़ एच एफ वन। ओके, अब ये एच एफ वन हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारे पास है मेजर लॉस। तो एच एफ वन हमने जब मेजर लॉस किया है और पीछे भी जो जितनी भी अभी तक डेरिवेशंस किए तो वहाँ पे मेजर लॉस किसके इक्वल आता था 4f L1 V1 स्क्वायर ओके V1 स्क्वायर अपॉन D1 इंटू 2G के इक्वल। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हेड लॉस आ जाएगा। एफ की वैल्यू हमें गिवन है, L1 भी गिवन है। ओके, तो V1 हम निकालेंगे, V1 किससे निकल जाएगा, V1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी डिस्चार्ज अपॉन एरिया के। तो एरिया तो हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि डाया हमें गिवन है पाई/4 डी स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा और जो डिस्चार्ज है वो भी हमें गिवन है 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास जो HF1 होगा हेड लॉस इन पाइप 1 इस वाले पोर्शन में, वो हमारे पास HF1 आ जाएगा। अगर हमारे पास H1 आ गया तो हम उसके बाद इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जेड डी की वैल्यू। ये जो जेड डी हमें निकालना है क्योंकि जेड ए तो हमें गिवन है, जेड ए किसके इक्वल था पी डी अपॉन रो जी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जेड ए की वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे देखो आप कैसे आएगी ये देखो यहाँ से हमने एच एफ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो यहाँ पे जेड ए की वैल्यू भी पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह से आ जाएंगी। जेड डी किसके इक्वल आ जाएगा पी डी अपॉन रो जी 36। ठीक है, 36.482 मीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है जेड डी प्लस पी डी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होता है पिजोमेट्रिक हेड। ठीक है, किस पे डी पॉइंट पे, तो पिजोमेट्रिक हेड डी पॉइंट पे आ गया हमारे पास 36.482 और जेड बी पे कितना है 38 मीटर। इसलिए अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास पिजोमेट्रिक हेड जो हमारे पास डी पे है वो लेस एज कम्पेयर टू पिजोमेट्रिक हेड एट बी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो फ्लो करेगा, डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। इस केस में वाटर जो फ्लो करेगा वो डी से बी नहीं करेगा क्योंकि जो भी वाटर बी से होगा वो डी की तरफ आने की कोशिश करेगा इस केस में, क्योंकि पिजोमेट्रिक हेड जो डी पे है वो लेस देन हमारे पास बी से है। अगर ये ग्रेटर देन होता तो डी से बी की तरफ मूव करता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट बी से। ठीक है, अब हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन अगर बी से डी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा जेड बी किसके इक्वल आ जाएगा, जेड बी किसके इक्वल आएगा, जो डी के ऊपर पिजोमेट्रिक हेड है जेड डी प्लस पी डी अपॉन रो जी और इन प्लस एच एफ टू पे। ठीक है, ये L2D2 है तो HF2। अब सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो जेड बी की वैल्यू हमें गिवन है 38 मीटर हमें गिवन है और इस वैल्यू को जेड डी प्लस पी डी अपॉन रो जी की वैल्यू। ठीक है, ये भी वैल्यू हमने निकाल ली अभी तो ये हमारे पास आई थी 36.482 और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें HF2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास HF2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी हमारे पास 1.518 मीटर। ठीक है, तो सारा काम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन का है और साथ में डार्सी-वेइरबैक इक्वेशन इन विच वी डिटरमाइन द मेजर लॉसेस विच इज लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया, HF1 हमने निकाल दिया। ठीक है, HF1 हमने निकाल दिया, उसके बाद हमने पिजोमेट्रिक हेड एट डी भी निकाल दिया बीच मीन्स जेड डी प्लस पी डी अपॉन रो जी प्लस सॉरी पी डी अपॉन रो जी ये भी हमने निकाल लिया और उसके बाद HF2 भी हमने निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। ये वाली चीज़ भी हो गई। ओके, उसके बाद हमने HF2 भी निकाल लिया। अब इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास HF2 की वैल्यू किसके इक्वल आती है,
अब हेड लॉस तो हमारे पास इसी इक्वेशन के इक्वल होता है 4f L2V2 स्क्वायर। F2 की बात हो रही है तो इसमें सेकंड वाला पाइप का आ जाएगा। तो यहाँ से हमें F2 की वैल्यू भी गिवन है, F की वैल्यू भी गिवन है, L की भी गिवन है, सिर्फ V2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हमें V2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर V2 की मिल गई तो हमारे पास डिस्चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, A2 इंटू V2। तो A2 पाई/4 D2 स्क्वायर से हमें एरिया मिल जाएगा और V2 का हमने यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज भी आ जाएगा जो 20.2 लीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं D2C। ओके, अब D2C कहाँ से कहाँ तक था? अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे हम D2C तक। ओके, तो हमारे पास D2C में क्या आ जाएगा? यहाँ तक प्रिज्मेट्रिक हेड, सिमिलरली वैसे ही ZD प्लस PD अपॉन रो जी। ठीक है, ये तो इसका आ गया D का, और हम निकालना है C तक का। तो C के केस में क्या आ जाएगा? C के केस में आ जाएगा ZC प्लस HF एंड 3। ओके, अब इस टर्म की वैल्यू हमें निकाली हुई है हमने पहले से। ठीक है, ओके, तो ZC की वैल्यू हमने निकालनी है और HF3 हम निकाल लेंगे डार्सी वेबैक इक्वेशन से। ठीक है, कौन सी इक्वेशन होती है? 4F L3V3 अपॉन D3 इंटू 2G से। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम जब HF3 निकाल रहे होंगे, ठीक है, HF3 निकाल रहे होंगे जो किसके इक्वल होता है? 4F L3V3 स्क्वायर अपॉन D3 इंटू 2G के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज़ पता है एक्सेप्ट V3 के। ठीक है, अब V3 की वैल्यू हम कैसे निकलेंगे? V3 किसके इक्वल आ जाएगा? डिस्चार्ज अपॉन एरिया विच इज़ पाई/4 D3 स्क्वायर। ओके, इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अभी मैंने जब हमने सॉल्व किया था पीछे, तो हमने देखा था फ्लो जो हो रहा है, क्योंकि पीजोमेट्रिक हेड जो डी पे है वो क्या कम आ रहा है? पीजोमेट्रिक हेड एट बी से। ठीक है, तो फ्लो जो हो रहा था वो बी से डी की तरफ हो रहा था और यहाँ से ए की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो Q1 प्लस Q2 है, ठीक है, ये वाला और ये 2, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? Q3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का सम यहाँ पे Q3 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो Q3 किसके इक्वल आ जाएगा? Q1 हमने निकाल रखा है पहले से। ठीक है, सिमिलरली Q2 भी निकाल रखा है, तो इन दोनों की वैल्यू सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0802 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब हमारे पास डिस्चार्ज Q3 आ गया, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं V3 भी। तो Q3 अपॉन A3, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी V3 की, विच इज़ 1.134 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हमें V3 भी मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, जो डिस्चार्ज हमारे पास, क्योंकि पिज़ोमेट्रिक हेड जो डी पे था, ठीक है, वो कम था बी से, तो फ्लो जो हमारा हो रहा था बी से डी की तरफ हो रहा था, और सिमिलरली जो फ्लो था हमारा ए से डी की तरफ हो रहा था। तो अल्टीमेटली जो डिस्चार्ज जो 3 पे आएगा, सी पे आएगा, वो किसके इक्वल आएगा? दोनों का डिस्चार्ज के इक्वल। ठीक है, तो वहाँ से हमने V3 निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास V3 भी आ गया। तो अब हमें जो मेन चीज़ निकालनी थी ZC, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो अब यहाँ से हमारे पास V3 आ गया जब, ठीक है, तो ये ZC हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास Z3 की वैल्यू आ जाएगी 32.288 मीटर। ओके, तो एक बार इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा पूरा कि ये कहाँ से आया। ओके, तो ये था हमारा फ्लो थ्रू ब्रांच पाइप्स। ओके, इसमें हमने थ्योरी भी देख ली इसकी और इसका एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। ओके, तो इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास पाइप नेटवर्क्स। ओके, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइप नेटवर्क्स में, वो हमारे पास है हार्डी क्रॉस मेथड। हार्डी विच इज़ हार्डी क्रॉस मेथड। ओके, तो ये आपके एग्ज़ाम में 2-3 बार आया हुआ है कि हार्डी क्रॉस मेथड क्या होता है। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे पास पाइप नेटवर्क सब देखते हैं, पाइप नेटवर्क्स क्या चीज़ होती है।
तो पाइप नेटवर्क्स क्या होती है? ए पाइप नेटवर्क इज ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पाइप्स फॉर्मिंग सेवरल लूप्स और सर्किट्स। ओके, तो इसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हो कि पाइप नेटवर्क क्या होता है। मान लो कि जैसे हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई हो रही है वो एक तरह से डिफरेंट पाइप्स का नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ से वाटर आ रहा है, उसके बाद वो डिफरेंट एरियाज में सप्लाई हो रही है, तो उस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं पाइप नेटवर्क। ओके, तो इस सिस्टम में हमें क्या चाहिए होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए नेटवर्क में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वली हो थ्रू आउट द एरिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस जो होती हैं, वो जो इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो एक बार देख लो आप कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फ्लो इनटू ईच जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द फ्लो एट द फ्लो आउट ऑफ द जंक्शन। मीन्स कि जो इनलेट आ रहा है हमारे पास और जो आउटलेट होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। जो फ्लो हमारा इनलेट हो रहा है और जो आउटलेट हो रहा है दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। वो हमारे पास कहाँ से आएगा? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ हेड लॉस अराउंड ईच लूप मस्ट बी जीरो। ओके, तो हमारे पास अगर पाइप नेटवर्क है कुछ इस टाइप का, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। इस तरह का आपको सर्किट दिया हुआ है पाइप नेटवर्क का। ओके, तो सेकंड हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो अलजेब्रिक सम होगा, कोई भी हम एक लूप ले लें, मान लो ये वाली लूप ले ली, ठीक है, ये वाली लूप ले ली हमने, तो इसका जो अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है, हर एक लूप का, वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हर एक लूप में द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जो हेड का लॉस हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वो किसके इक्वल होगा? लॉस ऑफ हेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास नेसेसरी सेकंड कंडीशन है। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि जो हेड लॉस होगा पाइप में वो किसको एक्सप्रेस करेंगे? एच एफ इजिकल टू आर क्यू रेज पावर एन। और ये जो आर है हमारे पास, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ पाइप पे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है ये किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारे पास एफ के इक्वल, और एल हमारे पास लेंथ होगी। तो ये इन दो टर्म्स पे हमारे पास आर जो होता है ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं ये आर हमारे पास क्या आया। तो जो इसके से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जो एन होता है, एन, इसमें जो अगर टर्बुलेंट फ्लो है हमारे पास तो एन की वैल्यू हमेशा 2 होती है। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं ये आर क्यू रेज़ पावर एन कैसे आया। तो यहाँ पे देखो, अब आपने देखा था कि हेड लॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है? 4 ऑफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2 जी के इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? वी की जगह हम कट कर पुट कर देंगे क्यू अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया। और सिमिलरली इसको हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ पाई बाई फोर डी स्क्वायर। ओके, कैपिटल डी स्क्वायर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर आ जाएगी, तब ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी? इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने क्या कर लिया? क्यू स्क्वायर को हमने ऐसे ही मान लिया, ओके, इस वाले क्यू स्क्वायर को, और बाकी जो टर्म थी हमने उसको आर ले लिया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया आर किसके इक्वल आ गया? 4 FL 2G पाई बाई 4 D5 के हमने इसको आर ले लिया। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से आया, हमारे पास हेड लॉस जो हम बोल रहे हैं कि एच एफ इजिकल टू आर रेस पावर क्यू रेस पावर एन। तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने टर्बुलेंट का केस लिया हुआ है। ओके, अगर हमारे पास फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है हमारे पास, वो उनको सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो करते हैं एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस का मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो उस काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो उस मेथड का नाम है हार्डी क्रॉस मेथड। ओके, तो इसी पाइप नेटवर्क्स को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं हार्डी क्रॉस मेथड, ठीक है। क्योंकि ऐसे नेटवर्क्स काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हार्डी क्रॉस मेथड क्या होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हार्डी क्रॉस मेथड क्या होता है।
तो इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्टली हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कोई डिस्चार्ज, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई अज्यूम डिस्चार्ज कर लेते हैं, इस तरह से अज्यूम करते हैं कि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करे। ओके, अब जो हमारे पास डिस्चार्ज वैल्यू हमने अज्यूम की है, उससे क्या करते हैं, उससे थ्रू हम हेड लॉस निकालते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम निकालते हैं हेड लॉस। ओके, अब डिस्चार्ज हमने अज्यूम कर लिया, उसके बाद हमने हेड लॉस भी निकाल दिया। उसके बाद क्या करते हैं, पाइप नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट पाइप नेटवर्क्स होते हैं, इस तरह के पाइप नेटवर्क होंगे, ठीक है, अब आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का पाइप नेटवर्क होगा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब हमने डिस्चार्ज अज्यूम कर लिया, उसके बाद हमने हेड लॉस हमने निकाल लिया अज्यूम वैल्यू से जो हमने की हुई है। उसके बाद हमारे पास जो हेड लॉस होगा वो आना चाहिए ज़ीरो। हर एक कोई भी अगर हम लूप कंसीडर कर लें, कोई एक पर्टिकुलर लूप हम कंसीडर कर लें, तो उसमें हमारे पास जो हेड लॉस आएगा वो आएगा ज़ीरो। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लॉस ऑफ हेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ओके, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो लॉस ऑफ हेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, ठीक है, ये था हमारे पास, ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है, पहले हमने डिस्चार्ज अज्यूम कर लिया, फिर हमने हेड लॉस निकाल लिया, उसके बाद हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक सम आ रहा है वो हेड लॉस का ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम निकालेंगे नेट हेड लॉस। ओके, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, अगर हमारे पास जो नेट हेड लॉस है उसकी वैल्यू जो हमने किससे निकाला, जो नेट हेड लॉस जो डिस्चार्ज हमने अज्यूम किया था, अगर डिस्चार्ज निकालने की जो हमने अज्यूम किया था उससे हमारा नेट हेड लॉस ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो अपना डिस्चार्ज की वैल्यू अज्यूम की थी उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास डेल्टा क्यू की, तो इसको निकालने का एक तरीका है, ये हमारे पास डेल्टा क्यू निकालने का फार्मूला होता है, डेल्टा क्यू। ओके, टर्बुलेंट फ्लो के लिए केस में क्या होता है, एन जो हमारे पास होता है वो 2 होता है, तो उस केस में फार्मूला बन जाएगा ये। ओके, तो ये हमारा डेल्टा क्यू निकालने का फार्मूला है। ओके, अगर हमारे पास डेल्टा क्यू जो हमारा निकला वो आया पॉजिटिव, ठीक है, तो उसको हमने ऐड करना है कहाँ पे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, जो फ्लो हो रहा है उसमें हम ऐड करेंगे इसको। ओके, अगर हमारे पास डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है, ओके, और सिमिलरली अगर हमें क्लॉकवाइज फ्लोज में हम ऐड करेंगे, और जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होंगे वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, जो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ रही है अगर वो पॉजिटिव आ रही है। ओके, सिमिलरली अगर नेगेटिव आ रही है तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ रही है तो क्लॉकवाइज से माइनस कर देंगे और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद कुछ ऐसे लूप्स भी होंगे जहाँ पे कोई एक सिंगल पाइप जो होगी वो कॉमन होगी, इस लूप के लिए भी वो कॉमन होगी, इस लूप के लिए भी कॉमन होगी, तो उस केस में हमें टू करेक्शन जो होती हैं जो कॉमन होगी उसमें वहाँ पे टू करेक्शंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, उसके बाद अगर करेक्शन अप्लाई करने पे भी जो हमारी सेकंड ट्रायल जो हमने लिया, जो हमने फर्स्ट अज्यूम किया था वो तो गलत हो गया, उसके बाद सेकंड जब हमने ट्रायल किया करेक्शन फैक्टर लेके, उसके बाद भी अगर हमारे पास ये आ रहा है अलजेब्रिक सम ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें फिर से उसको करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा और फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा हार्डी क्रॉस मेथड है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का नेटवर्क आपको दिया होगा पेपर में, न्यूमेरिकल इस टाइप का, ओके, इस टाइप का नेटवर्क दिया होगा और आपको बोला होगा वहाँ पे हार्डी क्रॉस नेटवर्क से मेथड से इसको सॉल्व करो। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट लूप्स है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, जी एफ ए, एक लूप ये हो गई हमारे पास, उसके बाद एक लूप एफ ई जी एच, ठीक है, एक लूप ये हो गई, उसके बाद जी एच सी डी, इस तरह की हमारे पास डिफरेंट लूप्स होंगी। तो इन लूप्स का जो हमारे पास हेड लॉस का अलजेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो आना चाहिए, अगर ज़ीरो नहीं आएगा
तो हमें उस पर करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। अगर करेक्शन फैक्टर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स हमें क्लॉकवाइज में जो फ्लोज हो रहे हैं उनको पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा उसमें करेक्शन फैक्टर को, और एंटी क्लॉकवाइज में हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, और वाइस वर्सा फॉर अदर केस। ओके, इस प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल नहीं हो जाए, जब तक कि वो ज़ीरो नहीं हो जाए। ओके, तो इस प्रोसेस को हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू जब तक ज़ीरो नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आप इसको समझ पाओ कि हार्डी क्रॉस मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके देन, थैंक यू, हैव ए गुड डे।